شہید رہبر اعلیٰ سید علی خامنئی کی مشہد میں روزہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں تدفین۔ نماز جنازہ کے اجتماع میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ نماز جنازہ آیت اللہ خامنئی کے سب سے بڑے بیٹے نے پڑھائی۔ ہر جانب رکت آمیز مناظر۔ جنازے کے شرکاء کا نم آنکھوں کے ساتھ شہید کی خدمات کو خراج عقیدت۔ رہبر اعلیٰ کی میت کربلا میں نماز جنازہ کے بعد مشہد لائی گئی۔ علی خامنئی کے آبائی شہر کی سڑکوں پر عوام کا سیلاب امڑ آیا۔ شہداء کی تصاویر، انتقام کے پرچم اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بلند۔ سید علی خامنئی کا الوداعی سفر تہران کے ثقافتی مرکز امام خمینی مصلی سے شروع ہوا۔ پاکستان سمیت مختلف مملکت کے سربراہان اور وفود نے بھی آخری دیدار کیا۔ آزادی اسکوائر پر لاکھوں افراد کے اجتماع نے جلوس جنازہ کو تاریخی بنا دیا۔ عراق کے شہر نجف میں روضہ حضرت علی علیہ السلام اور کربلا میں روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر بھی نماز جنازہ کے بڑے اجتماعات میں شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ خامنئی کی نماز جنازہ کے دوران ایران کے مختلف شہروں میں مسلسل تیسری رات بھی دھماکوں کی آوازیں۔ بوشہر، بندر عباس اور کونارک میں دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق۔ امریکہ کے ایران پر 2 روزہ حملوں میں ایئرپورٹ، بندرگاہیں، ریلوے اور سڑکوں کے پل نشانہ۔ بندر عباس، بوشہر، چابہار، کنارک، اہواز اور جزیرہ کیشم سمیت 90 اہداف پر بمباری کی گئی۔ ایران، چین، روس کی تجارتی راہداری بھی تباہ۔ تینوں ممالک کو ملانے والی سڑک کا پل اڑا دیا گیا۔ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب فضائی بمباری سے کئی دھماکے سنے گئے۔ جنوبی صوبے ہرمزگان میں بندرگاہ پر بھی حملہ۔ عمارت تباہ کرنے کی سیٹلائٹ فوٹیج سامنے آ گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے آلات، میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، بحری جنگی صلاحیتیں اور فوجی لاجسٹکس کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران کے صوبے بوشہر میں ساحل پر لنگر انداز ماہی گیری کی کشتیوں پر بھی امریکی میزائل حملے۔ بمباری سے کشتیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے امریکی فضائی حملے جنگی جرم قرار دے دیے۔ جنوبی صوبوں میں کئی مقامات اور مشرقی صوبوں میں ریلوے روٹس کے 2 پلوں کو تباہ کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے حملے اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی اور جنگ کے خاتمے کی مفاہمتی یادداشت میں شامل ذمہ داریوں کے بھی برخلاف قرار دے دیے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف کارروائی کو بحری جہازوں پر کی جانے والی بمباری کا بدلہ قرار دے دیا۔ خبردار کر دیا، جہازوں پر دوبارہ حملے کے نتائج اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہوں گے۔ ایران پر امریکی حملوں کی ویڈیوز اور تصاویر بھی شیئر کر دیں۔ امریکی حملوں کے بعد پاسداران انقلاب کی بھی بھرپور جوابی کارروائی۔ بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ آپریشن کے دوران کویت میں امریکی کیمپ عارف جان اور علی السالم، بحرین میں الجفیر اور شیخ عیسیٰ کو نشانہ بنایا گیا۔ قطر، بحرین اور کویت میں خطرے کے ظاہراً گونجتے رہے۔ ایرانی فضائیہ نے امریکہ کا جدید ترین MQ-9 گرانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ بھرپور ہاتھ ہے، ہر لحاظ سے بھرپور۔ وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں، اسلحہ مہیا کر رہے ہیں۔ افغانستان میں یہ دہشت گرد مل کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ KP میں دہشت گردی کے واقعات میں مشرقی ہمسائے کا ہاتھ۔ دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ آخری فسادی اور دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے قوم کے ساتھ مل کر فتنے کو ختم کرنے کا عزم دہرا دیا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیاں دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور ملک سے جلد دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلوچستان میں گزشتہ 4 دن میں سنگین واقعات پیش آئے۔ ان کارروائیوں میں شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 42 افراد شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 54 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔
शहबाज शरीफ का कोयटा में बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की यकीन दहानी। एपेक्स कमेटी के इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के खिलाफ कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर 5वें रोज भी धरने जारी। हन्ना उड़क में मुतासरीन का एयरपोर्ट रोड पर धरना। हन्ना उड़क में दहशत गर्दों की फायरिंग से 5 मकामी अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए थे। ज़ियारत में पुलिस एहलकारों के कत्ल के खिलाफ इसमकली रोड पर भी धरना। मुजाहिरीन ने इलाके से दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा कर दिया। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस आज के लिए मुअत्तल। वज़ीर आज़म से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई आमनी की कोशिशों में पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को सराहा। डॉक्टर गोर्डन गरलेज राडमान की दफ्तर ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी मुलाकात। पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सखाफ़त और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म की क्रोशिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ओरमाड़ा के अतराफ कार्गो जहाज के लापता 5 अरकान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज़ों समेत सी किंग, डिफेंडर हवाई जहाज़ और नेवल ATR भी शरीक। तलाश ऑपरेशन मुमकिना मकाम के अतराफ में मजीद 15 से 20 नॉटिकल माइल्स के दायरे तक बढ़ा दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ तबाह होने वाले जहाज़ का कुछ हिस्सा मिला। रेस्क्यू हुकाम और सर्चर को तैयारे के ब्लैक बॉक्स की भी तलाश। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी 24 घंटों में दूसरा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। ओरमाड़ा के करीब डूबने वाली कार्गो कश्ती पर सवार 20 अफराद को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सी किंग हेलीकॉप्टर और डिफेंडर जहाज ने हिस्सा लिया। लाहौर में 10 साला बच्ची की ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्ची घर से ट्यूशन पढ़ने गई, मुर्दा हालत में मिली। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। बुरसा की जानिब से दरखास्त मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में नौमौलूद जिंदा बच्ची को मुर्दा करार देने पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जुलाई को शनाख्त और एड्रेस चेक किए बगैर बच्चे की लाश हवाले की गई। जिंदा बच्ची को मुर्दा करार देने के वाक़ये पर 2 डॉक्टर्स और 1 नर्स जिम्मेदार करार। डेटा ऑपरेटर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी गफलत के मुर्तकिब ठहरा दिया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सिक्योरिटी कंपनी को जुर्माने और नर्सरी वार्ड की सिक्योरिटी सख्त करने की सिफारिश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। इब्राहिम हैदरी मलीर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन रेलवे कॉलोनी के ऊपर 120 दिन की मुख्तसर मुद्दत में पुल तामीर किया गया। अजीमपुरा फ्लाईओवर 93 दिनों में मुकम्मल हुआ। सहूलत से कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को फ़ायदा हुआ। चंद माह में शाहराह भुट्टो भी तामीर की गई। करीमाबाद अंडरपास, सेनेटर ताज हैदर पुल और कोरंगी कॉजवे पुल भी तामीर किए गए। मुर्तज़ा वहाब की ब्रीफिंग। चेयरमैन ने शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मंसूबों और सरमायाकारी पर तफसीली तबादला ख्याल। कराची में खतरनाक और मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। SBCA ने मानसून बारिशों से कबल 59 इंतहाई खतरनाक इमारतें मिस्मार करने की तैयारी कर ली। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का अब्बासी शहीद अस्पताल में अमले को तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा। शहर की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया।
जमात इस्लामी पहले ये बताए अपने ज़ेरे इंतज़ाम टाउन्स में कितने नालों की सफाई कराई गई। जमात इस्लामी और MQM दोनों कराची की बदहाली के जिम्मेदार हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल। कराची में आइंदा वही रिक्शे चलेंगे जिन पर मीटर नस्ब होंगे। चिंगची रिक्शों को मरकजी सड़कों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ई चालान सिस्टम और लैंड मार्किंग से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई। ई चालान में गलतियां हो जाती हैं, शहरियों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बिल्कुल अपने आबाओ अजदाद का जो नज़रिया है हम उसके साथ हैं, और किसी भी सूरत किसी भी ऐसे जत्थे को जो स्पेसिफिकली हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ होगा, हम किसी सूरत भी उनका साथ नहीं देंगे। यहाँ पे बाज़ार खुले हैं, रोडें हमारी बिल्कुल उस पर ट्रैफिक बहाल है। वादी अलीपा की अवाम ने कलअदम कमेटी की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। कलअदम एक्शन कमेटी की अमन व अमान ख़राब करने की किसी भी साजिश का हिस्सा ना बनने का ऐलान। शहरियों के मुताबिक अवाम ने इंतशारी कमेटी की कॉल को मुस्तरद करके बाजार और ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक रवा रखा। काबिज भारतीय फौज कश्मीरियों पर वहशियाना मजालिम कर रही है। यहाँ पाक फौज हमारी हिफाजत पर मामूर है। आज़ाद कश्मीर से नून लीग के वफ्द की वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से मुलाकात। आइंदा इंतखाबात और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ के मुत्तादिद रहनुमाओं का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। फॉल है वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में, और जो एक अचानक वो एक स्पेल आ जाता है और प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स हैं, उधर अर्बन पॉन्डिंग का भी खदशा है। हमें पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखनी चाहिए। कोई चीज़ भी आपकी हर तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। मॉनसून के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंतजामिया को पेशगी तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इसमें कई इकदाम हुए हैं, लेकिन नाइट पार्टीज के हवाले से कोई कमेटी नहीं बनी। लेकिन डेफिनेट इसको बहुत ज़्यादा सोसाइटी का एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत नहीं। और PM ने कोई इनिशिएटिव लिया है सर? जी, PM ने पूरी स्टडी करवा दी है इसके ऊपर, और PM ने उसके बाद पूरी मीटिंग करके जो भी मुतालिका लोग थे और जो इदारे थे उनको डायरेक्टिव्स जारी की। इस्लामाबाद में HIV एड्स के माहाना 35 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट की कायमा कमेटी कौमी सेहत के इजलास में बड़ा इंकशाफ। बड़े शहरों में एड्स फैलने की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें नाइट पार्टीज भी शामिल हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने नाइट पार्टीज को रोकना पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जुनूबी की अदालत में गुल प्लाजा केस की समाअत। अदालत ने चालान मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट की मालूमात न होने पर तफ्तीशी अफसर पर बरहमी। ये बताएं इदारों ने अपना काम ठीक से किया या नहीं, अदालत का सवाल। मुल्जिमान के वकील का DC, फायर ब्रिगेड और दीगर को बचाने की कोशिश का इल्जाम। कराची की मकामी अदालत ने एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला 7 साल बाद सुना दिया। मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। शरीक मुल्जिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए। बहरिया टाउन से वाबस्ता 3 मुल्जिमान को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत सजाएं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 1-1 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया। वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव बहरिया टाउन कर्नल रिटायर्ड खलील, हवाला एजेंट इमरान काका और प्रॉपर्टी डीलर मुश्ताक अहमद पर बहरिया टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए गैर कानूनी तरीके से रकम भिजवाने का इल्ज़ाम था।
डेरा इस्माइल खान में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। पुलिस ने दोनों ग्रुपों में तसादुम देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। खैरपुर के इलाके बरियालों में रिश्ते के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, बाप बेटे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली पाक रूस ताउन की नई अलामत बनेगी। उवैस लखानी ने दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, तिजारत, हवाबाजी, तालीम और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई और सनती शोबों में ताउन मुसलसल फरोग पा रहा है। वफाकी वजीर तवानाई का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। आलमी मंडी में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत तेल की कीमतों में कमी आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $74 से कम होकर $72.20 फी बैरल की सतह पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $79 फी बैरल से घटकर $76.80 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर मज़ीद LNG खरीदने का फैसला। एक LNG कार्गो की स्पॉट खरीदारी के लिए टेंडर जारी। यूरोप में अफगान बाशिंदों की इंसानी स्मगलिंग बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन गई। तुर्किया से यूरोप जाने की कोशिश पर 24 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। तुर्क हुकाम के मुताबिक रवा साल के पहले 5 माह में 16,000 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। अफगान जरीदे अफगान इंटरनेशनल की रिपोर्ट। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर ने दरिया भी खुश्क करना शुरू कर दिए। फ्रांस के मशहूर दरियाए लवाहिर का पानी भी खुश्क हो गया। जर्मनी में गर्मी से 5,000 से ज़ायद अमवात की तस्दीक। लंदन में भी शदीद गर्मी का राज। चिड़ियाघर के दौरे के दौरान बादशाह चार्ल्स ने कहा कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा परेशान करती है। मोदी के दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान इंसानी हुकूक की तंजीमों का पुरजोर एहतजाज का ऐलान। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत से इंसानी हुकूक के मामलात उठाने के मुतालबात जोर पकड़ने लगे। दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी तंजीम ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, तास्सुब और जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एहतजाज का ऐलान कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप में 2 रोज़ा आराम। मेगा इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल जुम्मे की शब खेला जाएगा। फ्रांस और मराकश अमरीकी शहर ह्यूस्टन के स्टेडियम में आमने सामने होंगे। मिस्र से फतह छीनी गई। मेयर न्यूयॉर्क ने भी अर्जेंटीना की कामयाबी और रेफरी के मुतनाज़ा फैसलों पर सवाल उठा दिया। मराकश के खिलाड़ियों का भी मिस्र के साथ इजहार यकजहती, नस्ल परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठा दी। FBI ने अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक FBI और फेडरल प्रोसिक्यूटर्स अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ करोड़ों डॉलर्स रकम की अमरीका मुंतकली की तहकीकात कर रहे हैं। चेक रिपब्लिक की लेंडा नोस्कोवा पहली बार विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। यूक्रेन की मार्टा कोस्टेविक को पहले दोनों सेट हरा दिए। दूसरे सेमीफाइनल में कैरोलिना मोचावोव ने कोको गाउफ को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली।